کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان بولا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہم آپ کی اس بات کی یقین دہانی کریں گے، آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت اللہب، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور وہ چیز جو اس نے کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا وہ آگ میں جو شعلے والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اس حال میں کہ اٹھانے والی ہے وہ لکڑیوں کو۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی یا لوہے کی۔ سورت اللہب مکمل آیت مکمل سورت تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، ماقبل سورت کے ساتھ تعلق کہ گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذکر کیا تھا۔ اب اس سورت میں اسلام میں نہ داخل ہونے والے ایک شخص کے عذاب کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے انجام بد کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک اور ربط اور ایک اور تعلق یہ بھی ہے کہ گزشتہ صورت میں مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فتح نصرت کا تھا، اس صورت میں کافر کے لیے وعید کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول ہے اور بہت ہی مشہور واقعہ، آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو تبلیغ کیجئے، ان کو توحید کی دعوت دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا، جو کوہ صفا ہے، اس پر چڑھے اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صباحا یا صباحا، پھر اپنے جو قریش قبیلہ ہے اس کے پکارا، کیسے یا بنی عبد مناف یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب وغیرہ وغیرہ، یہ جو قبیلے کے جو تھے ان سب کو بلایا، ان سب کو پکارا۔ چونکہ اس طرح بلانا، اس طرح پکارنا یہ ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے سارے کے سارے قبیلے والے لوگ جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے آ گئے۔ جب وہ سارے جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان بولا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہم آپ کی اس بات کی یقین دہانی کریں گے، آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات کا اتنا ہی یقین ہے تو پھر میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، جو شرک کی وجہ سے، جو کفر کی وجہ سے تم پر واقع ہوگا۔ اگر تم نجات کا راستہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ آخرت کے اندر تمہیں عذاب نہ ہو، تمہیں نجات مل جائے، تو پھر توحید پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی تم معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان تمام کے تمام معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو پکارو، اپنی ہر مشکل میں اس اللہ کو پکارو۔
ले जी, ये बात पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी थी कि वहीं खड़ी वो सारी की सारी कौम बिगड़ गई। और उस कौम के अंदर जो अबू लहब था, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, वो कहने लगा नाउज़ बिल्लाह तब्बन लका या मोहम्मद अली हादा जमाअतना, के नाउज़ बिल्लाह हलाक हो जाए आपके दोनों हाथ ए मोहम्मद, कि आपने हमें इसलिए जमा किया। फिर उसने पत्थर उठा के पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसने फेंक दिया और साथ साथ उसने गालियां दी। उन्होंने जो है ना गालियां बकी उसने। और उसके बाद से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गया। जहाँ देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं, वो लोगों को उससे तबलीग से रोकता, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चे लगाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारता, बच्चों से कह के पत्थर मरवाता। यानी कि ये उसने सारा कुछ किया। और वो लोगों से कहता कि मेरा भतीजा जो है वो जनून हो गया, नाउज़ बिल्लाह, इसकी किसी बात पर एतबार ना करना। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में उसकी मजम्मत जो है ना वो बयान फरमाई है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाएं, हलाक हो जाएं अबू लहब के हाथ। अब यहाँ पे जो यदा है ये तस्निया है, असल में यदान था, इजाफत की वजह से नून गिर गया। और जो यद है इससे अब ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि सिर्फ अबू लहब के जो है वो हाथ वो तबाह हो, नहीं, हाथ जो है वो पूरे जात मुराद होती है। क्यों? क्योंकि इंसान की जो जात के अंदर हाथों का बड़ा अमल दखल होता है। जिन बेचारों के हाथ नहीं, आप उनसे कभी पूछे कि उनकी जिंदगी कैसी है। इसलिए यहाँ पे यद को जिक्र करके उसके पूरी जात मुराद ली कि अबू लहब जो है वो पूरा की पूरी उसकी जो जात है वो टूट जाए, हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। अब ये जो अबू लहब है, लहब ये कुनियत है। लहब का मानी होता है आग का शोला, क्योंकि जो अबू लहब था वो बहुत खूबसूरत और सुर्ख रंग का था, इसलिए उसकी एक कुनियत मशहूर हो गई, वरना असल में जो उसका नाम था वो अब्दुल उज़्ज़ा था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे अबू लहब की कुनियत जिक्र की गई, उसका असल नाम जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो इसके दो तीन जवाब है। पहला इसका जवाब ये है कि कुनियत से वो ज्यादा मशहूर था, नाम उसका कोई कोई लोग जानते थे, कोई कोई नहीं जानते थे, लेकिन कुनियत एक ऐसी थी जो ज्यादा मशहूर थी, इसलिए उसको यहाँ पे जो है वो कुनियत का जिक्र किया गया, नाम नहीं लिखा गया। दूसरा ये है क्योंकि वो नाम शिरकिया था, इसलिए शिरकिया होने की वजह से वो नाम को नहीं लिखा गया, यहाँ पे अबू लहब ही लिखा गया। और तीसरा जवाब इसका यह है कि लहब का मतलब होता है आग का शोला, तो अल्लाह ताला ने यह जिक्र फरमाकर इसके जहन्नमी होने की तरफ इशारा कर दिया कि अबू लहब जो है वो हमेशा आग के शोलों के अंदर ही अपने आप को समझे और अपने आप को वहीं रखेगा। तब्बत यदा, ये जुमला है, ये बद्दुआया जुमला है, और ये बद्दुआ अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दिल ठंडा करने के लिए दी थी। क्योंकि अबू लहब ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी तो मुसलमानों ने ख्वाहिश की थी कि उसके लिए भी बद्दुआ करें, तो अल्लाह ताला ने उनके मुसलमानों के दिल की बात जो है वो खुद फरमा दी, और अल्लाह ताला ने कहा कि तब्बत यदा अबी लहब, मतलब कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका वो टूट जाए, वो ख़त्म हो जाए। ये सारे यानी कि जो है ना ये अल्लाह ताला ने उसके लिए बद्दुआ की। अब इस बद्दुआ का असर ऐसा हुआ कि वाक़या बदर के तकरीबन 7 दिन के बाद उसको एक बीमारी ने आ घेरा जिसका नाम था ताउन, और ताउन की वजह से उसको ताउन की गिल्टी निकली और घर वालों ने इस खौफ से कि कहीं ये बीमारी हमें ना फैल जाए, हमें भी ना हो जाए, घर वालों ने उसको एक जो है ना उठा के जंगल के अंदर जो है ना उसको लगा दिया, और ना उससे कोई करीब जाता। कहते हैं उसका चेहरा बिगड़ गया, उसके मुंह से कुत्तों की आवाज़ें आने लग गई, और यानी कि हालत बहुत बुरी हो गई कि वो उसी हालत में तड़प तड़प कर जो है ना वो मर गया। तो घर वालों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उन्होंने तो उसके पास जाते ही नहीं थे। लेकिन जब वो मरा तो 2 से 3 दिन बाद उसकी बदबू जब घर वालों तक पहुंची तो फिर उनको पता चला कि जी ये मर चुका है और इसकी लाश में से बदबू आ रही है। तब घर वालों ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, एक गड्ढा खुदवाया, और उन लोगों की मदद से जो है ना उसको गड्ढे में फेंक के ऊपर से मट्टी से उसको बराबर कर दिया। यानी कि ये था दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजाम। यानी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बद्दुआ दी तो अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भी जलील कर दिया, आखिरत में तो उसको जलील किया ही किया जा रहा है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, यानी माल और उसकी कमाई
उसको इबरतनाक अंजाम से बचा न सकी। मालहू व मा कसब, इसकी दो तफसीरें की गई हैं। पहली तफसीर ये है मालहू से असल माल मुराद है और वमा कसब से उस माल से जो नफ़ा हासिल किया है वो मुराद है। और दूसरा ये है कि मालहू से माल मुराद है और वमा कसब से औलाद मुराद है। हज़रत आयशा, हज़रत मुजाहिद, हज़रत अता इब्न सिरीन रहमहुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये सारे फरमाते हैं कि यही मानी इससे मुराद लिया जाएगा कि मालहू से माल और वमा कसब से औलाद मुराद है। क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को अजाब की खबर दी तो अबू लहब ने कहा अगर ये सच है, अगर मेरा भतीजा सच कह रहा है तो मैं अपने आप को माल से और औलाद से बचा लूंगा। क्योंकि अबू लहब जो था वो कसीरुल माल भी था और कसीरुल औलाद भी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अपने आप को ना माल से और ना ही वो अपने आप को औलाद से किसी से भी बचा ना सका, बल्कि उसकी औलाद ने, उसके घर वालों ने उसको गड्ढे में फेंका, उसको घर से उठा के बाहर फेंक दिया। ना माल काम आया ना उसकी औलाद काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, पहले दुनिया के हाल का बयान था, अब आखिरत के अंजाम बद का बयान है कि अन करीब अबू लहब मरने के फौरन बाद सीधा आग के अंदर जाएगा। और आग भी कोई आम आग नहीं होगी, बल्कि आग भी भड़कने वाली, शोले मारने वाली वो आग होगी। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब के अंजाम के जिक्र करने के बाद अब यहाँ से उसकी बीवी के अंजाम का जिक्र किया जा रहा है। अब उसकी बीवी, क्योंकि अबू लहब की तरह उसकी जो बीवी थी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी दुश्मन थी। आप सल्लम को एज़ा पहुंचाती थी, एज़ा रसानी करती थी, दुश्मनी करती थी, मुखालफत करती थी, अपने खाविन का पूरा ये औरत साथ देती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी निभाती थी। नाम इसका अरवा बिनते हरब था और ये भी हरवा बिनते हरब बिन उमैया, ये इस ख़ानदान से थी। और उम्मे जमील इसकी कुनियत थी। अबू सुफियान की ये बहन थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये भी जहन्नुम के अंदर ही जलेगी, इसको भी इस जो इसने दुनिया में हरकतें की हैं उसकी सज़ा जो है वो आखिरत के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और दुनिया में इसको भी सज़ा मिली, आगे इसी का बयान आ रहा है। हम्मालतल हतब, ये उस सूरत के हाल का बयान किया गया है। इसका लुग़वी मानी तो है कि आग जलाने वाली, लकड़ी जमा करके जो उठाने वाली है उसको हम्मालतल हतब कहते हैं। यहाँ हम्मालतल हतब से क्या मुराद है, इसके हमें दो तीन एहतमाल हैं। पहला इसमें एहतमाल ये है कि इससे हकीकी मानी मुराद है, यानी लकड़ियाँ जमा करने वाली, क्योंकि ये औरत जंगल से खारदार लकड़ियाँ जमा करती थी। रात को जमा की, दिन को जमा करके रात को फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बिछाती थी। लाइटें, रोशनी तो होती नहीं थी। जब आप वसल्लम उस रास्ते से गुजरते थे तो वो खारदार झाड़ियाँ आप वसल्लम के पाँव में लगती थी और उनको तकलीफ पहुँचती थी। ये औरत का ये काम था, ये सारा कुछ यही करती थी। और दूसरा इसका ये है कि बाद मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि इसका जहन्नुम का हाल बयान किया जा रहा है। जहन्नुम का हाल कैसे कि जहन्नुम में ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने शोहर पर डालेगी ताकि इसकी आग में इजाफा हो, शोहर की आग में। और जिस तरह दुनिया में उसके कुफर को, जुल्म को ये बढ़ाती थी, आखिरत में भी उसके अजाब को बढ़ाएगी। एक हम्मालतुल हतब से ये तर्जुमा में मुराद है। तीसरा आखिरी हम्मालतुल हतब से चुगलखोरी मुराद है, क्योंकि इसको चुगलखोरी की बड़ी आदत थी। जो चुगलखोरी किया करते थे, खानदानों के अंदर फसाद डलवाते थे और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आजकल भी औरतों में ये बातें आम पाई जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये बहुत बड़ा गुनाह है चुगलखोरी, हम सबको इससे महफूज रखे। लेकिन आजकल खानदानों के अंदर ये इस वजह से, चुगलखोरी की वजह से बहुत सारे ख़ानदान टूट जाते हैं, दरमियान में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। हमें इस गुनाह से अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, हिफाजत में रखे। इसलिए भी इसको हम्मालतुल हतब कहते हैं। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब मसद जो है सीन के सकून के साथ, यानी कि मस्द अगर हम इस तरह पढ़ते हैं तो ये मस्दर बनेगा। इसका मानी होगा रस्सी बटना या डोर बटना, तार पे तार चढ़ाना, इसका ये मतलब होगा, यानी कि मजबूत करने के मानी में। और अगर हम इसको मसद पढ़ें, जैसे कि हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, यानी कि सीन के फतह के साथ, तो फिर रस्सी या डोर को कहते हैं जो मजबूत बनाई गई हो, उसको मसद कहते हैं। अब ख्वाह वो किसी भी चीज़ की हो, खजूर की हो, उसको भी नारियल की हो, आहनी तारों की हो, हर तरह की मजबूत रस्सी जो है वो इसमें दाखिल है।
اب اس آیت کے بارے میں مفسرین اکرام کے دو قول ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ آیت میں ابو لہب کی بیوی کے جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے اور مسد سے مراد لوہے کی تاروں سے بنا ہوا توک ہے, جو مقصد یہ ہے کہ جہنم میں اس کی گردن میں لوہے کی تاروں سے بٹا ہوا مضبوط توک ہوگا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ مسد سے یہی تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں اور حضرت عروہ بن زبیر, ان کا بھی یہی قول ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے جس میں حضرت شابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے دنیا کا حال تھا. اب وہ دنیا کا حال کیسے تھا کہ مسد سے کھجور کی رسی مراد انہوں نے لی دنیا کے حال کے مطابق. اب یہ فرمایا کہ ابو لہب جو تھا وہ بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی ظاہر سی بات ہے مالدار تھی, لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ کنجوس عورت تھی بہت زیادہ. تو یہ کیا کرتی تھی, یہ جنگل سے لکڑیاں جمع کرتی تھی, جمع کرنے کے بعد ان کو لاتی تھی, لکڑیوں کو باندھ کر ان کی رسی اپنے گلے میں باندھتی تھی تاکہ اگر لکڑیاں گر جائیں تو وہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں, وہ میرے گلے میں رسی رہنے کی وجہ سے وہ گرے نہیں. ہوا ایسا کہ ایک دن وہ لکڑیاں لا رہی تھی, گٹری اس ٹائم بڑی تھی, وہ اچانک گری اور وہ رسی جو ہے وہ گلے کے اندر پھنسی اور وہ وہیں پہ جو ہے نا گلا دبنے کی وجہ سے وہ مر گئی, جہنم واصل ہو گئی. اب یہ ہے کہ حضرت شابی کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد, لیکن جو پہلے والی تشریح میں نے کی ہے کہ جہنم کے اندر اس کو لوہے کی تاروں سے بنا ہوا ایک توک ڈالا جائے گا, وہ تشریح جو ہے وہ والی تفسیر جو مفسرین کرام نے کی ہے وہ بہتر ہے, کیونکہ ابو لہب کی بیوی سے ایسا کرنا وہ بعید از عقل ہے, کیونکہ وہ مالدار آدمی کی بیوی تھی, اس کو ایسے کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ کر نہیں سکتے. اسی بنا پر جو پہلی والی تفسیر ہے مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح طریقے سے سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک پر ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.